Pregnant or planning? Get holistic support with 9 and Beyond, your trusted pregnancy companion. इनफर्टिलिटी की जो कंप्लेंट है ये काफी अभी कॉमन होती जा रही है। जो पहले इसका इंसिडेंस 1 in 15 कपल्स, 1 in 20 कपल्स है, इट्स ऑलमोस्ट 1 in 6 और 1 in 8 कपल्स है जो बेसिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हम करते हैं, विच इज जस्ट गाइडिंग द कपल टुवर्ड्स द टाइम्ड इंटरकोर्स, जिसमें उनको हम गाइड करते हैं कि ये आपका फर्टाइल पीरियड है, ये पीरियड में आप इंटरकोर्स करेंगे, देन द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बिकम हायर। कभी कभी ये सिंपल चीजें भी उनको नहीं पता रहती है। दे आर हैविंग इंटरकोर्स बट प्रोबेबली दे आर नॉट हैविंग एट द करेक्ट टाइम। Now we come to IUI। व्हेन द ओवुलेशन इज अबाउट टू हैपन, तो वो पीरियड में हस्बैंड के स्पर्म्स को हम लेते हैं, वो सैंपल जो स्पर्म सैंपल देते हैं उसको हम प्रोसेस करते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्पर्म वॉश। दैट एक्टिवेट्स द स्पर्म्स, मेक्स देम मोर मोटाइल। वो एक्टिवेटेड स्पर्म सैंपल हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, तो हम उनको पास में ला रहे हैं। वी आर जस्ट फैसिलिटेटिंग कि ये सही समय पे स्पर्म्स एग के पास पहुंच जाए विदाउट एनी बैरियर। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इंटरकोर्स इतना फ्रीक्वेंटली नहीं रख पाते हैं, या फिर हस्बैंड को ऐसी प्रॉब्लम होती है वो टाइम पे इजैक्यूलेट नहीं कर पाते, उनको इरेक्शन नहीं आता है, या फिर उनके स्पर्म सैंपल थोड़ा सा इसमें काउंट, स्पर्म की काउंट कम होती है, थोड़ी सी मोटिलिटी कम होती है। सो दोज माइनर थिंग्स गेट करेक्टेड। Hello and namaste. Once again, your guide and friend Sonia Pava from 9 and Beyond, your holistic Garbh Sanskar podcast channel. So, as promised, once again, we are here to share more knowledge, more wisdom with you. And this time, we have once again with us Dr. Riddhi Doshi, who's a very accomplished and renowned gynecologist from Mumbai. She's been kind enough to come second time here. For all those, in case you have missed her first podcast, please do look it up at YouTube because she did share a lot of wisdom, lot of new things to learn. So you can always go back and check that podcast also. But today she's here once again with a very special mission today, actually. See, her field of expertise is basically infertility and high risk pregnancies. And keeping that in mind, she has mastered the art of ART, which is advanced reproductive technologies like IVF, IUI, and ICSI. She also specializes in embryo freezing and egg freezing. So today basically, see, there are times, अब आप लोगों ने इतने पॉडकास्ट देख लिए हैं, आप लोग अगर होलिस्टिकली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं with scientific, of course, knowledge about everything, there are times in life, there are certain couples who, despite lifestyle changes, weight management, right nutrition, हर चीज़ सही करने पे भी कभी कभी ऐसे होता है किसी किसी कपल्स के साथ कि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। आज का पॉडकास्ट उनके लिए डायरेक्टेड है बिकॉज लाइक वी आर 9 and beyond, so we definitely go beyond, take a step further to basically share that knowledge with you, ताकि हम हर पहलू से आपकी मदद कर सकें, जिससे आपकी जो डिज़ायर है, आपके जो ख्वाब ख्वाब हैं, जो आपके विशेज़ हैं, वो फुलफ़िल कर सकें। So, keeping that in mind, that sometimes when these holistic things do not work and there are bigger medical reasons for it, there is hope, there is help, and that is why Dr. Riddhi Doshi is here to basically share that knowledge with you. Thank you so much, Doctor, for again taking out your time and coming here and being with us once again to share this knowledge with us and helping out the patients who so definitely want this help. Thank you so much for inviting me on this platform. It's great to be back here and having this nice conversation with you
on the topic and in the field from which I'm very passionate. And I feel the more you talk about it, the more you make everyone aware about it, the journey gets simpler and better. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ जब हम अपने आप को एम्पावर करते हैं उस नॉलेज से, हम राइट डिसीजंस लेते हैं, राइट पाथ पिक करते हैं एंड डेफिनिटली रिजल्ट्स बेटर होते हैं। यस यस, और या ये बातें ज़रूरी है कि करेक्ट चैनल से और अच्छे तरीके से पुट फोर्थ की जाए, जी, ना कि कोई उसको नेगेटिव लाइट में लिया जाए, बिकॉज़ इतना कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहता है आज के अपने लाइफस्टाइल में। जी, पीपल आर सो स्ट्रेस्ड अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर, तो एक एक साथ में कई बैटल्स हम या लड़ते हैं, ऐसा है। सो बिल्कुल, उसमें से जो बैटल मैं जिसके बारे में और हम जिसके बारे में बात करेंगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट वन हैज़ टू डील विद। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको उतना समय दें और हम बिल्कुल, उसको उतने डेप्थ में जाके उससे डील करें, ना कि दूसरे चीज़ों की तरह उसको सुपरफिशियली लें। वो बहुत एब्सोल्युटली, ज़रूरी है। सो दैट वी कैन टर्न द बैटल इनटू अ प्रोसेस, एब्सोल्युटली, राइट? यस, यस, परफेक्ट। वेरी ट्रू, वेरी So ट्रू। to begin with, let's first explain what exactly is infertility. सो सी बेसिकली जो डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी की, उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कपल है जो 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है, जी, अनप्रोटेक्टेड मीन्स विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, right, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स, कोई भी मेथड जिससे बेबी ना हो सके उसको right, यूज कर रहा है, और फिर भी उसके बावजूद उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। सो एट एंड ऑफ 1 ईयर दैट फिट्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इनफर्टिलिटी। वो कपल्स को हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और उनको हम अपने अप्रोच से हेल्प करना चाहते हैं। दैट्स द वे। absolutely. And then when you realize कि इस कपल ने 1 साल ट्राई करने के बाद, not only just by not using the precautions but also by doing the lifestyle changes, weight यस। management, मतलब हर वो सही चीज कर ली, हुँ, but वो सब नहीं हुआ अगर, हुँ। then you come in and we use the scientific technologies, यस, right? And these are like you explain IVF, IUI, यस, and ICSI, right? यस, So can we go one by one, doctor? Okay, what यस। is IVF? What is the process? यस, Yeah. एंड बिफोर वी गो विद द ट्रीटमेंट ऑप्शंस Yeah. जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इन माय प्रैक्टिसेस दैट ये चीज़ें या ये इनफर्टिलिटी की जो कंप्लेंट है, या ये काफ़ी अभी कॉमन होती जा रही है। जी, जो पहले इसका इंसिडेंस 1 in 15 कपल्स, 1 in 20 कपल्स है, इट्स ऑलमोस्ट 1 in 6 और 1 in 8 कपल्स। okay. सो व्हेन दे अप्रोच अस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड पूरा बैकग्राउंड उनका, कि वो कब से ट्राई कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से ट्राई कर रहे हैं, क्या वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं, या फिर वो कोई ऐसे चेंजेस में अभी प्रोसेस में है। Hmm. बिकॉज मैनी अ टाइम्स बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें स्किप हो जाती है या उनको पता नहीं रहती है। जो प्री कंसेप्शनल मेडिसिन है, ऐसा कुछ ले रहे हैं, नहीं ले रहे, वेदर दे आर फॉलोइंग द करेक्ट वे to have sex and following the timing. So एक बेसिक हिस्ट्री जो हम लेते हैं हर एक कपल जी, का, वो बहुत डिटेल में ज़रूरी है, बिकॉज दे कम विद दैट एंग्जाइटी कि हमें बेबी नहीं हो रहा है, आप जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट बताइए, हम आज से ही शुरू कर देते हैं। Hmm. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी स्लो इट डाउन, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि क्या रीजंस है पॉसिबल। तो जब हम डिटेल में उनकी इंडिविजुअल लाइफ़स्टाइल समझते हैं, उनका वर्क क्या है, वो बाकी कैसे अपना स्पेंड करते हैं टाइम, उनके फूड हैबिट्स, स्लीप पैटर्न्स, एवरीथिंग, एंड दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, एंड देन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस स्टार्ट के ये आपके लिए सूटेबल होगा। पहले ये सब टेस्ट करते हैं, पहले समझते हैं, एंड देन वील गो फॉरवर्ड इन द जर्नी ऑफ एक्चुअली स्टार्टिंग द इंटरवेंशन व्हिच इज़ नीडेड। Exactly. So, can I ask one question? जैसे आपकी ये 3 चीज़ें हैं, हुँ, IVF, IUI एंड ICSI. हुँ। सो ये ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं या ये नीड है एज़ पर द मेडिकल कंडीशंस? सो ब्रॉडली जब भी हम आईवीएफ ट्रीटमेंट्स की अम्ब्रेला में जाते हैं, सो इट कवर्स ब्रॉडली थ्री थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट इज दैट व्हेन यू डू फॉलिक्यूलर ट्रैकिंग एंड टाइम्ड इंटरकोर्स जिसको हम बोलते हुँ, हैं, सेकेंड कम्स एज आईयूआई, इन विच यू आर इंसेमिनेटिंग द स्पर्म
जो महिला है उसके यूट्रस में। एंड थर्ड इज ART। ART में जो है उसमें आता है फर्टिलाइजेशन की मेथड विच इज IVF और ICSI, जिसको ICSI बोलते हैं। सो अच्छा। ये 3 ब्रॉड ऑप्शंस है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन से पेशेंट को हम क्या एड्रेस करेंगे, किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। किसको कौन-सा वाला इनमें से ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सूट करेगा। एग्जैक्टली सो दैट एग्जैक्टली इज़ नॉट अ ऑप्शन, इट्स यस नॉट अ चॉइस, इट इज़ डन एज़ पर द मेडिकल नीड्स। यस, इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। वेरी इन कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हम शुरू करते हैं एंड दे कंसीव। राइट। कोई पेशेंट में व्हेन वी आर डूइंग द प्रोसेस वी रियलाइज कि दिस इज नॉट वर्किंग, वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। और कोई क्लियर कट ऐसे पेशेंट्स रहते हैं कि जिनको हमें पता ही है कि उनको हमें स्किप करके ये स्टेप पे ही जाना पड़ेगा। सो दैट क्लैरिटी नीड्स टू बी देयर एंड दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय द पेशेंट। उनको भी ये ऑप्शन समझते हैं कि जी। हम क्यों ये चीज में जा रहे हैं। So can we explain it to them यस what is IVF and what is the process for it? You know, one by one, ताकि उनको एकदम क्लैरिटी हो कि क्या चीज़ है और इसको क्यों यूज़ किया जा रहा सो आई स्टार्ट विद द बेसिक, जो मैंने आपको बताया, जो बेसिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हम करते हैं, विच इज जस्ट गाइडिंग द कपल टुवर्ड्स द टाइम्ड इंटरकोर्स, जिसमें उनको हम गाइड करते हैं कि ये आपका फर्टाइल पीरियड है, ये पीरियड में लेडी का ओवुलेशन होने वाला है, दिस इज द विंडो विच इज द फर्टाइल विंडो। तो आप ये पीरियड में आप इंटरकोर्स करेंगे, ये पीरियड में आप सेक्स करेंगे फ्रीक्वेंटली, डेली और ऑन ऑल्टरनेट डेज, देन द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बिकम हायर। कभी कभी ये सिंपल चीजें भी उनको नहीं पता रहती है। दे आर हैविंग इंटरकोर्स बट प्रोबेबली दे आर नॉट हैविंग एट द करेक्ट टाइम। है। सो राइट। वी गाइड देम ऑन अ बेसिक लेवल कि ये फर्टाइल पीरियड है। उसमें एक स्टेप फर्दर इम्प्रोवाइजेशन होता है जिसमें हम फॉलिक्यूलर ट्रैकिंग करते हैं। फॉलिक्यूलर ट्रैकिंग मीन्स कि हम जो लेडी है उसका जो अंडा है, जो फॉलिकल है, उसको ट्रैक करते हैं कि वो एवरी डे विद द साइकिल कैसे डेवलप हो रहा है। एंड देन ऑन अल्ट्रासाउंड ओनली, सोनोग्राफी पे ही हम डिटेक्ट करते हैं कि अभी ओव्यूलेशन हुआ है या ये अभी 24 आवर्स में नेक्स्ट में ओव्यूलेशन होगा। ओके। सो दैट इज मोर एक्यूरेट। सो वो ओव्यूलेशन विंडो हम उनको बता सकते हैं कि अभी ये नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में यू आर गोइंग टू ओवुलेट। सो अभी आप इंटरकोर्स करें। So you do the sonography then every day in that time Not period? required daily, usually alternate days or Okay. once in 2-3 days, depending upon क्या है उनका ग्राफ रिक्वायरमेंट। Okay. इफ इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट जिसको बनने में ही टाइम लगता है, ओवुलेशन एग होने में, तो जी। उनको थोड़े फ्रीक्वेंटली हमको स्कैन्स करने पड़ते हैं। हम्म। नॉर्मल साइकिल वाला पेशेंट है तो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो देन वी डू नॉट नीड टू कॉल देम एवरी डे एंड इंक्रीज द स्ट्रेस की जी। अभी अंडा बना कि नहीं है, तो वो भी हम ध्यान में रखते हैं। दैट Okay. लेट्स नॉट मेक इट अ वेरी मैकेनिकल प्रोसेस ऑल्सो, Okay. बट लेट्स मेक इट लिटिल मोर एफिशिएंट, Right. सो वी गेट द रिजल्ट्स अ लिटिल फास्टर। Okay. सो ये हो गए जो बेसिक टाइम्ड इंटरकोर्स की जो ट्रीटमेंट लेवल है उसके बारे में। नेक्स्ट जो है जिसको बोलते हैं IUI विच इज एक इंट्रा। एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो सोनोग्राफी वेदर यू डूइंग इट ऑल्टरनेट डे और एवरी डे डिपेंडिंग ऑन द नीड, इज इट एब्सोल्युटली सेफ फॉर द पेशेंट टू बी एक्सपोज टू दिस? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सेफ है। ठीक है। दिस इज एन अल्ट्रासाउंड विच इज डन ट्रांसवजाइनली, इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है। ओके। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है ठीक है। पेशेंट को। दैट्स ठीक है। वेरी Okay. सिंपल अबाउट So इट। this was the first was the process of IVF, करेक्ट। right? Now we come to come to IUI. IUI. Okay. So IUI is just a minor improvement in the previous treatment level, जिस पे हम सिमिलर वे से स्टार्ट करते हैं कि उनका ओवुलेशन ट्रैकिंग करते हैं। जी। प्रॉबेबली थोड़ा बूस्ट करने के लिए वी गिव सर्टेन टैबलेट्स टू इंड्यूस ओवुलेशन ऑन अ टाइमली लेवल। एंड व्हेन द ओवुलेशन इज अबाउट टू हैपन, तो वो पीरियड में हस्बैंड के स्पर्म्स को हम लेते हैं। वो सैंपल, जो स्पर्म सैंपल देते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं विच इज कॉल्ड एज स्पर्म वॉश। Okay. That activates the sperms, makes them more motile, Okay. and keeps away all the pus cells and all the impurities निकल जाते हैं उसमें से। Mhm. और वो एक्टिवेटेड स्पर्म सैंपल हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। Okay. सो देयर बाय वी आर एक्चुअली
getting the sperm and the egg in vicinity to each other when the Okay. timing is correct. तो हम उनको पास में ला रहे हैं. जी. We are just facilitating कि ये सही समय पे स्पर्म्स एग के पास पहुंच जाए विदाउट एनी बैरियर. कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इंटरकोर्स उतना फ्रीक्वेंटली नहीं रख पाते हैं, या फिर हस्बैंड को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम पे इजैक्यूलेट नहीं जी. कर पाते हैं, उनको इरेक्शन नहीं आता है, Right. या फिर उनके स्पर्म सैंपल थोड़ा सा इसमें काउंट्स स्पर्म की काउंट कम होती है, थोड़ी सी मोटिलिटी कम होती है. जी. सो दोज माइनर थिंग्स गेट करेक्टेड. जिनका ओवुलेशन टाइम पे नहीं होता उसका हमें पता नहीं, तो वो टाइमिंग का करेक्शन हो जाता है, एंड स्पर्म को हम स्ट्रॉन्गर करके सही टाइम पे सही वे से डिपॉजिट डायरेक्टली यूट्रस में करते हैं. कभी कभी वजाइना की एसिडिटी, सर्विक्स के अराउंड के कभी कोई लीजन्स, दे काइंड ऑफ स्पर्म्स को रोक देते हैं अंदर जाने से. जी. in simple words, so we are bypassing that and putting the sperms directly closer in the uterus, where they will swim, go in the tubes, meet the egg over there, fertilize it, and give a pregnancy. So Okay. this is about IUI. Okay. ये दोनों ट्रीटमेंट्स हम बेसिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में गिनते हैं. अच्छा. जो एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, दैट विच वी कॉल एज IVF, जो ART का मेजर पोर्शन जो है वो IVF है. सो Okay. IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंपलर वर्ड्स में जिसको हम बोलते हैं, जी. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम नेचुरल प्रेगनेंसी को ही मिमिक कर रहे हैं, Okay. कॉपी कर रहे हैं, बट हम एक पार्ट ऑफ द मेजर प्रोसेस प्रेगनेंसी का हम बॉडी से बाहर कर रहे हैं. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज, हम डायरेक्टली एग और स्पर्म को बाहर लेबोरेटरी में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस फर्टिलाइज करवा रहे हैं, और वो उसी से बनने वाला जो एम्ब्रियो है, जो गर्भ है, उसको हम रेडी करके यूट्रस में भेज रहे हैं. Okay. So that kind of goes a step ahead, where we are actually able to see the egg, see the sperm, see the fertilization, get the embryo made, get the embryo to grow, select the best embryo, Right. and transfer it into the uterus. जिसके steps में पहले stimulation of the ovaries आता है, number 1, where we are stimulating the ovaries with injections so that multiple eggs हम grow कर पाए. फिर वो eggs को हम retrieve करते हैं from the patient's body. That Right. is a process called as egg retrieval or oocyte retrieval. Small procedure under anesthesia, जिसमें हम ओवरी से वो eggs को collect करके body से बाहर निकालते हैं. वही समय पे husband के sperm sample को लेते हैं, उसको fertilize करते हैं by doing an IVF, where you just allow them to fertilize in a petri dish, जो पहले ज्यादा किया करते थे. जी. अभी हम ICSI फॉलो करते हैं, ICSI ज्यादा करके, Okay. जिसमें हम एक्चुअली स्पर्म को ओवरी एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं. सो वी आर इंश्योरिंग दैट द फर्टिलाइजेशन हैपेंस, एंड इट्स ऑल्सो वर्क्स फॉर पीपल हु हैव वेरी लेस स्पर्म काउंट, जिनके स्पर्म्स बहुत लिमिटेड है, एग्स बहुत लिमिटेड है. तो we are actually individually causing them to allowing them to fertilize, and then those embryos are put back into the uterus. So कोई आर्टिफिशियल इसमें इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत Okay. लोगों को लगता है कि इसमें हम कुछ आर्टिफिशियल कर रहे हैं. वी आर असिस्टिंग, दैट्स द मेन थिंग. वी आर असिस्टिंग व्हाट हैपेंस इन द बॉडी, व्हाट हैपेंस इन द फेलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रस. वो एक पोर्शन हम बाहर कर रहे हैं और वापस उसको यूट्रस में सिंक्रोनाइज करके उसको भेज रहे, एंड देन वी आर अलाउइंग नाउ द बॉडी टू प्रोसीड विद implantation. So this is how IVF works. Perfect. So in a way, you explained all the three processes, right? Yes. So how do you want these couples? Hmm. Suppose they're coming for to prepare themselves. What are the things they're supposed to do, and to prepare themselves physically, mentally, Hmm. so that not only they come for the treatment, Hmm. but there is a success rate to the treatment. Yeah. सो मेन जो मेरा एम रहता है पेशेंट्स को जब भी मैं काउंसिल करती हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस एंड दिस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, आई वांट देम टू बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, स्टेबल माइंड, बिकॉज इस प्रोसेस में यू नीड टू सस्टेन. I do not want patients to give up, to become irregular,
और एंड टू टेक अनवारंटेड ब्रेक्स, या जो जो रूटीन है जो फ्लो को जी। ब्रेक ना करे। तो मेरा उनको सबसे पहले कहने का मोटिवेशन यही रहता है दैट आप एक प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट अ लाइफ इन टू दिस वर्ल्ड, सो यू नीड टू बी एट योर बेस्ट फॉर दैट. So take it up as a happy challenge, as a good way to turn around your life into what you were doing for so many years. ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे थे इतने साल, बट अभी आप उससे भी बेहतर कर सकते हो और ये आपको एक मौका मिल रहा है. सो जी। डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, take it as an opportunity. Okay, now this is my time. This gives me kind of a wake up call या फिर एक motivation that I need to make myself the best version of what I am, what I can be. So So उसमें this three. is the holistic approach Correct, of Garp correct, Sanskar. correct. जी। This is what the essence is. So राइट। even we who are practicing very hardcore allopathic and technology driven treatments, हुँ। this aspect needs to be focused on. So मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप ये ट्रीटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले, आई मीन स्टार्ट करने से पहले, बी श्योर यू आर फिजिकली फिट, यू आर मेंटली फिट, and you are financially also prepared and ready. एब्सोल्युटली। All these things if planned, then you go smoother in the process. So physical fitness चेक करना है तो वो डॉक्टर चेक करेंगे, आपके टेस्ट होंगे, जनरल लेवल पे आपके विटामिन लेवल्स क्या है, आपके हीमोग्लोबिन क्या है, हाउ इज योर ब्लड प्रेशर, हाउ आर योर ब्लड शुगर्स, राइट। हाउ इज योर ओवरऑल बोन हेल्थ एंड योर न्यूट्रिशन, हाउ यू आर. सो वो एक फिजिकल चेक होगा, उसमें जो चीज़ें डेफिशिएंट होगी वो करेक्ट हो जाएंगी. मेंटली आई टेल देम कि यू स्टार्ट डूइंग सम फॉर्म ऑफ योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग. आप शुरू करो, स्टार्ट डूइंग इट, सी हाउ यू आर एबल टू डू इट. मे बी शुरू शुरू में आपसे नहीं होगा बिकॉज आपने शायद कभी पहले किया नहीं है, बट ट्राई टू मेक इट अ हैबिट. आज करेंगे, फिर मे बी 2 दिन बाद करेंगे, धीरे धीरे आप उसको रेगुलरली करो. सो दैट calms योर माइंड, that gives you a lot of relaxation, especially the women, because they go through the main, the या core द of प्रेशर। treatment goes around them. So मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये शुरू करिए. आपका जो भी वर्क रूटीन है, आपका जो भी चीज़ें हैं, उसके उसमें से गिव योरसेल्फ दैट मच टाइम, यू स्टार्ट डूइंग दैट. उसके साथ-साथ एक फिजिकल एक्टिविटी का भी आप टाइम निकालिए, व्हिच मेक्स यू लिटिल बिट कार्डियो, जिसको हम जी। बोलते हैं कार्डियो वास्कुलर, कार्डियो आपका फिटनेस हो. ये 2 चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करेगी. इवन डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज promotes your mental health, and doing yoga, chanting, meditation also gives you the mental strength. ये हो गया फिजिकल एंड मेंटल. थर्ड इज फाइनेंशियल, राइट। बिकॉज इस चीज का बर्डन सबसे ज्यादा होता है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय प्रैक्टिस. जी। बिकॉज डे 1 पे ही जब भी कपल्स आते हैं, उनका नंबर 1 क्वेश्चन है कि डॉक्टर इसमें खर्चा कितना लगेगा, ये कितने बार करना पड़ेगा, और हर बार इतना ही एक्सपेंसेस होगा, दिस एंड दैट. सो आई गिव देम दैट डिटेल ऑफ द फाइनेंसेस कि ये कॉस्टिंग आपको लग सकती है, मे बी लेसर, मे बी दिस मच. सो प्लान इन एडवांस योर राइट। फाइनेंसेस. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. अबे हमें कुछ महंगा लेना है तो हम अपने सेविंग्स करते हैं, हम बिल्कुल। ईएमआईज प्लान करते हैं, सो व्हाई नॉट फॉर दिस ऑल्सो, सो एग्ज़ैक्टली। दैट इट डजंट कम लाइक सडनली अभी मुझे इतने पैसे देने हैं. बिकॉज दीज ट्रीटमेंट्स are not expensive. It's actually very, very economical for the type of technology and for the type of work which is being done behind what you actually see. Behind the scenes राइट। बहुत काम होता है. So these treatments उसकी value है, the money which is charged, and उसके लिए आप prepare करेंगे. So you are also relaxed कि अभी we are going into this, हमने हमारा sort कर लिया है. जी। So this is you are, everything is ticked before you start. एंड बहुत कपल्स मैंने देखे हैं जो ये फॉलो करते हैं, देन दे आर क्वाइट रिलैक्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, बिकॉज देन दे डोंट हैव टू वरी. राइट। एंड देन द सोल फोकस इज कि अभी आप बताइए डॉक्टर, अभी हमें क्या क्या करना है, हमें कौन से मेडिसिन शुरू करने हैं. देन वो एक मैकेनिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि वो फिर करते रहना है, बाकी सब हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है. सो दिस इज माई. So basically they should be physically, Yes. mentally and financially
they have to prepare themselves Correct, before correct. they start the actual treatment, Yes, right? yes. What is generally the success rate of the treatment? सक्सेस रेट ऑफ इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स इज डिफरेंट। Okay. जो मैंने आपको बेसिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बताई जिसमें हम सिर्फ टाइम्ड इंटरकोर्स करवाते हैं जिसमें हम गाइड करते हैं आप ओवुलेशन विंडो फॉलो करो, दैट इज समवेयर अराउंड 8 to 10% Okay. पर मंथ। देन व्हेन इट कम्स टू आईयूआई उसमें 15 to 20% रफली इज द सक्सेस रेट एवरी साइकिल व्हेन द कपल डज। Okay. And the third is IVF. IVF can range from around 30% to about 50-60% depending upon क्या reason है IVF करने के लिए, which are the conditions under which you are doing the IVF. So certain situations जो absolute indication होती है कि अभी दोनों भी fallopian tubes blocked है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं रहता है IVF के अलावा। और ये इसमें आईवीएफ करते हैं तो सक्सेस रेट इज़ वेरी, वेरी हाई बिकॉज़ इट्स जस्ट द ट्यूब्स व्हिच आर ब्लॉक्ड, रेस्ट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो ये सिचुएशन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसको ओवरकम करना। देन देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कि फ्रॉम द बेसिक लेवल कि उनका एग्स ही बहुत कम है लेडी का, स्पर्म्स ही बहुत कम है, द क्वालिटी हैज़ बीन पुअर। ये सिचुएशन में वी हैव टू टेल द पेशेंट दैट वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट but the success rates are limited. Okay. IVF is also not some magic which will turn around things. जो आपके बॉडी में है, जो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसी को हम असिस्ट करके आपको प्रेगनेंसी के लिए हेल्प कर रहे हैं। सो इफ दैट थिंग कमिंग फ्रॉम यू इटसेल्फ इज वीक, वी कैन ओनली होप दैट वी व्हाइल वर्किंग ऑन इट एक एग अच्छा नहीं है पर दूसरा अच्छा है, या एक एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना है दूसरा बनेगा। बाय बाय द वर्च्यू ऑफ क्वांटिटी वी होप दैट वी रीच दैट गुड क्वालिटी, वी हिट दैट बुल्स आई। सो दैट कैन बी अ लिटिल बिट अनप्रिडिक्टेबल कि कितना हो सकता है। सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक एंड टेल देम फ्रॉम द बिगिनिंग that these treatments can have success, it can have failure. You got to deal with it. इसको हमें फेस करना है, उससे हमें डिमोरलाइज़ या एकदम निराश नहीं होना है। फेल हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं हो सकता है सक्सेस। मेनी अ टाइम्स कपल्स 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आगे के अटेम्प्ट में कंसीव होते। आई हैड अ पेशेंट लाइक दैट हू हैड अटेम्प्टेड सेवरल साइकल्स बिफोर Okay. एंड स्टिल वाज़ वेरी पर्सिस्टेंट कि नहीं मैं अभी भी कोशिश करना चाहती हूँ। तो उन्होंने 1, 2 से 3 बार पहले किया था आईवीएफ। उससे पहले दूसरे ट्रीटमेंट्स भी इतने साल किए थे एंड शी हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द एज ऑफ 39-40। बट somehow when she did the IVF again, she got beautiful embryos जो अच्छे ग्रेड के थे एंड शी मैनेज्ड टू कंसीव। सो इट्स नॉट लाइक एंड ऑफ द रोड कि अभी इतनी बार हो गया है तो अभी नहीं होगा। तो थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है, सपोर्ट लगता है इंटरनली ऑल्सो एंड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। So, what you're trying to say is that वो बोलते हैं ना, try and try again till you succeed at last. That's one part of it. Yet at the same time, now this one is a blessed person. उसकी determination, उसकी power of the mind ultimately did it, करेक्ट। right? Yet there are cases who, despite all this, may still fail. यस। What would you advise them? How should they be mentally prepared to know? You have already said it कि ये एक process है, कुछ अंदर की कमजोरी थी जिसकी वजह से नहीं हुआ, तो आप उसी को एनहांस कर रहे हैं, नॉट डिपेंडिंग ऑन योर इनसाइड्स, राइट? इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, एम आई राइट? करेक्ट। Right? What would you advise them how to deal with this mentally and prepare themselves mentally that it still may not happen? सो आई आंसर इट विथ 2 एस्पेक्ट्स। एक जो टेक्निकल एडवाइस है जी। कि जब भी उनके खुद के स्पर्म या एग से बहुत बार कोशिश करने पे भी सक्सेस नहीं मिला है, सो सच पेशेंट्स वी एडवाइज देम जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन। थर्ड पार्टी मीन्स टेकिंग द हेल्प ऑफ अ डोनर हु प्रोवाइड्स द एग or a donor who provides the sperm when you know कि your own egg or your own sperm has not given you the result. Okay. This also is a part of IVF
क्योंकि हम सिर्फ वो गैमेट को सोर्स कहीं और से कर रहे हैं, जी, बट हम कर वही रहे हैं, उसी को फर्टिलाइज कर रहे हैं, और प्रेगनेंसी वही पेशेंट को हो रही है। Biologically, the patient is having a component which is from outside, but the pregnancy is with the mother only. It's different from surrogacy, where the uterus is yeah, from another person. right. यहाँ पे हम सिर्फ गैमेट को दूसरे से ले रहे हैं, जी, जिसको थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जो बहुत वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किया जाता है। जी, सो ऐसा नहीं है कि उनके एग या उनके स्पर्म से रिजल्ट नहीं मिला तो डोनर से नहीं मिल सकता। डोनर प्रोग्राम्स आर आल्सो वेरी सक्सेसफुल। सो व्हेन यू गिव दैट ऑप्शन टू द कपल, दे हैव सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। राइट, तो वो चीज़ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो ऑप्शन को वो चुन सकते हैं कि हम ये करते हैं क्योंकि हमने हमारे बॉडी पे इनफ लिया है। Probably we do not have the will to do it again, जी, which is fair, वो हो सकता है किसी के साथ। कोई 2 साइकिल के बाद भी बोल सकता है डॉक्टर अभी मैं नहीं कर सकती ये, या, बट आई स्टिल वांट अ बेबी, आई एम नॉट गिवन अप ऑन दैट। और कोई इतने टफ होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं मैं और इंजेक्शंस लूँगी, मैं अपने ही एग से मैं और ट्राई करूँगी। जस्ट अ वीक बैक आई हैड दिस पेशेंट हू हैज़ टेकन 7 साइकल्स ऑफ आईवीएफ। शी इज स्ट्रांग, शी इज सो डिटरमाइंड। खुद के ही एक्स से उनको उतना परसिस्ट करना था, even after doctors telling her, and she's determined that no, I want to try one last time, doctor. I think I have prepared myself very well. My body, I feel very fit right now, I feel very, stable and good. She's 41, she looks 31, literally वो वाओ! उन्होंने उतना केयर लिया। शी has taken that in that way, but that's her। ऐसे सब लोग या, नहीं होते हैं। बिल्कुल, तो जो बोलते हैं कि नहीं हम, यू गिव मी सम ऑप्शन वेयर आई कैन स्टिल गेट अ प्रेगनेंसी, बट मैं ये अपने आप से नहीं। सो दिस ऑप्शन इज डिस्कस्ड विद देम इन डिटेल। इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन, राइट, इट्स अ बिग डिसीजन टू मेक दैट हम कहीं और से एग करेंगे, हम कहीं और से स्पर्म लेंगे। बट ये हम कपल से डिस्कस करते हैं, पूरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज अ सक्सेस रेट, व्हाट आर द लीगैलिटीज, एवरीथिंग, एंड इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट, इट्स ऑल डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोई अंडर टेबल या ऐसा कुछ भी जी, नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी का ऑप्शन रहता है। दिस इज द technical aspect of your question, which we answer as doctors. And then coming to the emotional part, कि जो पेशेंट इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी फेल हो चुके हैं, जिन्होंने हर कोई चीज़ ट्राई की है, आई टेल देम सिंपली दैट यू नो इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। हैविंग अ बेबी डजंट डिफाइन यू या, और मेक योर लाइफ वर्थवाइल। कि आपको बेबी नहीं है तो आपका पूरा लाइफ को कोई मीनिंग नहीं, ऐसा नहीं है। Maybe it's not in your destiny to have a child, to undergo a pregnancy. Please think about adoption. That's a very noble thing to do also. राइट, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। Enroll yourself in the process. Go for adoption. Take that time to work on yourself. Recover हो जाइए उसमें से। और if you think whatever gives you peace, मैं सिंपली उनको वही बोलती हूँ। जिस चीज़ से आपको शांति मिले आप वो करिए। आपने ट्राई किया है, आप आगे आपके सर्कमस्टेंसेस नहीं है ये चीज़ करने के लिए, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो मेनी कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चूज़ टू रिमेन चाइल्ड फ्री। वो नहीं चाहते तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ रुक जी, जाती है। सो बिल्कुल, इट्स फाइन, गिव योरसेल्फ दैट मच क्रेडिट दैट यू ट्राइड योर बेस्ट। नहीं हुआ तो या हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते, वी क्लोज द चैप्टर, वी मूव ऑन इन लाइफ, और वी थिंक अबाउट अडॉप्शन, वी गो इन दैट डायरेक्शन, गिव सम चाइल्ड द ब्यूटीफुल लाइफ विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग टू डू, और उसमें आप इमर्स करो अपने आप को। सो दैट्स ऑल्सो हाउ वी यू कैन मूव ऑन। सो ये मेरे सजेशन हमेशा रहते हैं पेशेंट के लिए। right. So talking about treatment, so many injections, what are the general physical and mental discomforts which especially a woman has to go करेक्ट, through करेक्ट। while the treatments, these kind of treatments are happening? Just so that she's mentally सो more ये prepared. यस, सो ये Yeah. ट्रीटमेंट में हार्मोन लेने पड़ते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जी, सो दीज आर हार्मोन्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड वेरी particularly designed for doses that suit your body weight,
विच मैच विथ योर हार्मोनल पैरामीटर्स। ये हॉर्मोन्स आपके बॉडी में भी नेचुरली फ्लो कर रहे हैं। सिंस वी आर डूइंग IVF, since we want more eggs to come from 1 month, we give the injections of the hormones at one notch higher level. Still they are safe because वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं 24 आवर्स में। सो पेशेंट्स को यही डर रहता है, हम इतने हॉर्मोन्स ले रहे हैं, इससे हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ेगा। सो आई सिंपली टेल देम दैट these hormones will have an effect on your body, but it will be temporary. इससे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपके बॉडी में नहीं होंगे, कि कोई आपके लिवर खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बॉडी में कोई और ऑर्गन्स में या स्किन में प्रॉब्लम नहीं होते हैं। इट्स बिन प्रूवन वेरी एक्सटेंसिवली थ्रू रिसर्च, Okay. सो दैट सेफ्टी इज देयर। शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट्स होते हैं, वो मैं उनको लाइक 3-4 थिंग्स आई टेल देम Yeah. कि ये हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस इन विच यू आर टेकिंग द इंजेक्शंस, अराउंड अबाउट 2 weeks or maximum 1 month you will feel different. What can happen in that is, number one is you will feel the pain of the injection. Okay. वो एक होगा जो आपको कर आएगा, एक्सपीरियंस होगा। सेकेंड थिंग इज यू माइट फील bloating. You might feel that water retention and bloating sensation that can happen. Third, what can happen is you might feel your breasts are getting little heavy and tender. So ये हो सकता है। Fourth is what can happen, you can have a little bit of a gastric upset. Okay. थोड़ा सा गैसी फीलिंग आना, इंडिजेशन होना, लिटिल बिट कॉन्स्टिपेशन, ये हो सकता है। एंड लास्ट द फिफ्थ थिंग विच कैन हैपन इज यू विल फील अ जनरल सेंस ऑफ लेथार्जी। Okay. थोड़ा सा सुस्ती जिसे हम बोलते हैं, कि थोड़ा सा सुस्ती फील होना, थोड़ा स्लीपी स्लीपी फील होना। ये 5 चीजें मैं बोलती हूँ कि ये हो सकती है। So you may feel the pain, you may feel the bloating, Right. you may feel the indigestion, and you may feel the breast tenderness, and you may feel lethargy. Okay. Beyond that, nothing else is expected to happen during the time you're taking the injections. Mood swings. Mood swings, yes. So वो मैं lethargy, sleepiness Okay. उसी उस स्पेक्ट्रम में category में. Okay. कि वो चीज़ें हो सकती है, लिटिल बिट मूड स्विंग्स फील होना, Okay. स्लीपी फील होना, थोड़ा सा रेस्टलेस फील होना, वो हो सकता है। Okay. सो ये पेशेंट को भी बताती हूँ, उनके पार्टनर को भी बताती हूँ दैट इट्स योर ड्यूटी टू कंफर्ट हर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बिकॉज शी विल बी अंडरगोइंग दीज चेंजेस। पर ये टेम्पररी है, दैट्स द ओनली थिंग। वंस द प्रोस ट्रीटमेंट इज ओवर, जो इंजेक्शंस खत्म हो जाते, द बॉडी रिकवर्स, और ये चीजें लॉन्ग टर्म नहीं रहती। कोई भी इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं नहीं है. रहता These are all short term effects of the treatment. यस यस That's a very positive thing for them to hear. So, also in these challenges, physical and mental, what about the societal and the peer pressure which the couple may go through while the treatment is on, or when they're considering the treatment? How about that? How would you advise that? सो ये पेशेंट्स मुझे बहुत बार अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं दैट हमारे कपल फ्रेंड्स है, इनको प्रेगनेंसी हो गई, वी फील लेफ्ट आउट। देन इन लॉज हमें रिमाइंड कराते रहते हैं कि प्रेगनेंसी कर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये वो। सो आई टेल देम सिंपल वन थिंग, सबकी बातें सुनो, बट you don't need to react to everything that is being said to you. Try to filter, चीज़ों को फिल्टर करो। प्रेशर्स आपको आएंगे, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, वो आएंगे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वो प्रेशर आप अपने ऊपर नहीं लो। यू टेक देम इन अ लाइटर वेन, वो चीज़ों को सुनो और उसको भूल जाओ, बिकॉज दे आर नॉट रियली गिविंग यू एन एडवाइस ऑन हाउ टू डील विद इट, दे आर जस्ट गिविंग यू अ नैगिंग रिमाइंडर कि ये नहीं है, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। सो योर आंसर शुड बी, लुक, आई एम अवेयर अबाउट वेयर आई स्टैंड इन माई लाइफ with respect to fertility and baby and everything. We are doing what it needs to be done, and it would be great if you allow us that time.
फ्रेंड्स को हम ऐसे बोल सकते हैं जी। कि हम ट्राई कर रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेट्स नॉट डिस्कस दिस इन डिटेल, इफ आई या। फील द नीड टू टॉक टू यू, आई विल ब्रिंग इट अप ऑन माय ओन। एल्डर्स को, पेरेंट्स को हम वही बोलते हैं कि कभी-कभी मैं खुद सामने से बोलती हूँ कि प्लीज़ आपके इन-लॉज़ को भी लेके आइए। हुँ। So I from my end also am trying to give them that counseling and telling them that आपके बच्चे सही डायरेक्शन में हैं, वो करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है कि दे आर जी। ignoring it, they are trying it and things are not working the way it is, so we are doing the treatments which are necessary. So ये चीज़ों को थोड़ा टाइम लगेगा, आप सपोर्ट कीजिए और आपकी एडवाइस आप होमली रेमेडीज दीजिए, आप उनको राइट। कंफर्ट दीजिए और वो सब आप ध्यान रखिए, बाकी मेडिकल आप हम पे छोड़ दीजिए, वी आर डूइंग इट। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट उनके आजू-बाजू के लोग भी थोड़ा-सा रिलैक्स रहे, जी। बिकॉज़ इट्स दैट इज़ देयर डेली एनवायरनमेंट। उनको राइट। वही घर में जाना है और वही लोगों से रोज़ मिलना है। सो वी टीच देम दैट आल्सो हाउ टू डील विद इट, एंड मेबी मेरे कंसल्टिंग में मैं उतना नहीं डिटेल में बता पाऊँगी। बट जैसे कि होलिस्टिक में वी ऑल्सो हैव समटाइम्स काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट ऑन आवर टीम, वो उनको ये चीज़ों के बारे में भी बहुत हेल्प करते हैं और वो उनको बताते हैं कि हाउ टू डील विद दीज एवरीडे सिचुएशंस, बिकॉज एज अ डॉक्टर मैं उनको एक पॉइंट तक बता पाऊंगी, बट दे कैन डिस्कस दिस लाइक अ फ्रेंड टू समवन, एंड इट देन वो चीज़ निकल जाती है कि अभी ये कंसर्न हो चुका है, वी हैव एड्रेस्ड इट एंड यू आर सपोज टू डील विद इट इन दिस वे। सो वो क्लैरिटी एवरी स्टेप पे यू आर गेटिंग, यू आर नॉट बॉदर्ड बाई दोज माइनर थिंग्स जो आपको हिट करती रहती है, जी। तो वो आपका पाथ फिर क्लियर होता है। सो दैट्स हाउ आई अप्रोच दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। आपको लगता है लाइक जो गर्भ संस्कार है, हुँ, उसके 6 पिलर्स हैं। यस, You've already taken the name nutrition, yoga, meditation, chanting, right? Mantras. यस। So basically, the pillars are, we may put it in the category of गर्भ संस्कार के आपके आने वाले बच्चे के लिए. हुँ, But like you said, कि make yourself your best version first. या And all these pillars help you make you your best version. Do you agree as a scientific person that जो इंसान इन पिलर्स को फॉलो करता है वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग इनफ हो जाता है फेलियर्स को फेस करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए? डू यू एग्री? 100%। या। I agree because I have seen that in my practice, जो पेशेंट्स ऑलरेडी ये प्रोसेस में हैं, जो इन व्हाटएवर फॉर्म इट मे नॉट बी वेरी एलैबोरेट, बट कुछ जी। बेसिक भी वो कर रहे हैं टुवर्ड्स कनेक्टिंग विद देयर इनर सेल्फ, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू चैंटिंग, through some spiritual activity on a daily basis, they are able to deal with things in a much better way. या। They are able to take things in the right perspective. वो सक्सेस हो गया तो ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होते हैं, और अगर वो फेल हो गए तो वो ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं नहीं होते हैं। होते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड ऐसे वाइब्स वाले पेशेंट ना हमें भी एज डॉक्टर्स बहुत मोटिवेट करते हैं। True. That also is something which I have observed. I, at the end of that consultation, I actually feel very motivated myself because I have interacted with someone who has given me so much positivity. या। So we also learn, we also become, uh, a better person, or हमारे भी कई कई clouded thoughts automatically clear हो जाते हैं about the treatment, about our own life, because हमारी भी personal life की चीज़ें बैकग्राउंड में जी। चलती होती है, बिल्कुल। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू थिंक you have probably spent a very good day, and you've not just worked and given your services as a doctor, but you have interacted as a human being with someone and got, just felt Receive their better, aura and and positivity just which felt, they have yes, developed with all these yes, practices. yes, yes, definitely. Yeah. I have felt it myself, and I'm not saying this just for the sake of Yeah. saying it. Yeah. It is actually true. I have experienced that in my, limited practice and experience. Yeah. What would be your final word of advice for all these couples who are trying their best, whether it's successful, not successful? What would you tell them? My advice is that um, plan things,
number one. Secondly, be with each other, stick with each other as a couple. Yeah. Don't leave each other's hand. And success or failure, just move ahead in life, just go with the flow. Accept the fertility treatments with open arms. Don't have any doubts about it. Go through the right channel, take the right guidance, be a part of the process, understand what is going on in the treatment for you. That will just make it simpler and better for you to deal with. Yeah, that's, I think, the final Yeah, it's a message I very feel. beautiful advice. So thank you so much, doctor, for your valuable time and invaluable advice. It's All you beautiful couples out there, it's so clear जो हम 9 एंड बियॉन्ड में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, द राइट जिसको बोलते हैं ना यूनियन ऑफ वैदिक साइंसेस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली आपकी वैदिक साइंसेस आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं? Look at the positivity of the whole situation. I mean, like, there is no end to it, whether it is coming from Vedic sciences or it is coming from the modern technologies, right? There are various options. End of the day, like they said, there's so much light in the end of the tunnel because one thing is for sure. अगर आपने इन 6 pillars को follow किया है, which means you have gone beyond your basic needs, right? आपने वो effort किया है, वो बियॉन्ड जाने से द बेस्ट रिजल्ट विल बी you will be your better version, which is what we want in our next generation. So think about it. There are options, there are adoption options, which is so noble. There is no end to it, and yet I think I'm very convinced, doctor, कि अगर आप ये वैदिक साइंसेस के पिलर्स को प्रैक्टिस करते हैं, which is what you're agreeing, definitely आप इतने पॉजिटिव ज़रूर हो जाते हैं इन प्रैक्टिसेस से कि आप में वो एक क्षमता आ जाती है गॉड की विल को एक्सेप्ट करने की। बिकॉज़ absolutely एंड ऑफ द डे लाइक वी से एवरीबॉडी कैन ट्राई एवरीथिंग, गॉड्स विल हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड correct. एंड आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम all these spiritual practices of Vedic sciences. Do you agree? Absolutely, Right? absolutely. So definitely there is nothing to lose, lot to gain. भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए एंड डॉक्टर्स एंड हमारे गुरुज वो अपनी नॉलेज से आपको वो Faith. हर चीज़ से एम्पावर कर रहे हैं। सो गो फॉर इट with a very beautiful positive mind. Like this is, sometimes it's inside out and sometimes it's outside Yeah. in. So all these practices may give you the outside in of the picture of achieving what you need to achieve mentally. This mental strength will give you the physical strength to endure the treatments, make it successful. So it's like a circle. Yes, and you What just have, comes first, the yes, chicken or the egg? yes, and Right? just keep the Yeah. faith. I feel And just keep the faith. keep the Like you said, keep the faith, and also, like, God forbid, if it doesn't work, have faith in God कि उसके पीछे भी एक purpose for है. कोई reason. It is meant for something जो हमें आज नहीं दिखाई दे रहा है, 10 साल बाद दिखाई देगा. Yes. Always have that faith. Yep. Right? With that, thank you so much. Let's all go beyond ourselves to understand everything. Go for it. God bless you. Take care. May only the best happen to you all. Thank you so much for being here with us. Thank you, doctor. Thank you Thank you so so much. much for meeting.